Good morning, everyone. Today we are going to study the second chapter of Geography of Class 6, which is Lines on a Globe. Globe, the Earth, as we know, is a huge body. A much smaller representation of the Earth was created. This is called globe. A globe is a small, three-dimensional model of the Earth. Just like the Earth, it is spherical and its axis is tilted at an angle of 23 degrees 1 by 2 minutes. The axis is an imaginary line running through the center of the body around which the body rotates. The globe has another imaginary line running around its middle in the east-west direction called the equator, locating place on the globe. One of the main uses of globe, however, is in locating places. We do this with the help of two sets of imaginary lines called lines of latitude or parallels and lines of longitude or meridian. Together these lines form a grid which help us to locate place on earth. Lines of latitude. Latitude is the distance of a point on the Earth's surface north or south of the equator. As the lines of latitude lie parallel to the equator, they are known as parallels. Lines of longitude. Longitude is the distance of any places on the Earth east or west of the prime meridian measured from the center of the Earth. Lines of longitude are called meridian. Heat zone. Parallels help us mark the heat zone of the Earth. Due to the tilt nature of the Earth axis, there is an unequal distribution of heat and solar energy on the surface of the Earth. Based on the amount of solar energy received, the each hemisphere is divided into three heat: the torrid zone, the temperate zone, and the frigid zone. Next is local time. The time when the sun is directly over a meridian is midday or noon that meridian. This is known as local time. Standard time. If all places followed their own local time, the changes in time from one meridian to next would create a lot of confusion. To deal with this problem, every country has a standard time zone, a region that uses the same standard time from a time zone. There are 24 time zones in the world, separately from each other by 15 degrees or an hour. Greenwich Greenwich Mean Time. The prime meridian passes through Greenwich. Its local time is known as Greenwich Mean Time (GMT), International Date Line. To make things easier, the 180-degree meridian was chosen as the point from where each day is said to actually start on the Earth. It is also the place where one calendar day change to the next. This line is known as the International Date Line. The Earth grid. The parallel and the meridian intersect each other at the right angle. The point where they intersect are known as coordinates. The network that is created through the crisscrossing of parallels and meridians is known as the Earth grid.
लाइन्स ऑन अ ग्लोब, ग्लोब पर रेखाएं। ग्लोब, पृथ्वी जैसा कि हम जानते हैं एक बहुत बड़ी शरीर है। अगर हम कहें उसका एक छोटा सा हिस्सा जो उसका प्रतिनिधित्व करता है उसको बनाया गया है, जिसको कि हम लोग ग्लोब कहते हैं। ग्लोब एक छोटा स्वरूप है जिसमें 3 आयाम दिखाए गए हैं पृथ्वी के स्वरूप का। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी दिखता है स्फेरिकल गोलाकार, उसी तरीके से इसको भी गोलाकार बनाया गया है और इसको 23 डिग्री 1/2 मिनट एक्सिस पे टिल्ट किया गया, झुकाया गया है। द और यहाँ पे जो एक्सिस जो है ये एक इमेजिनरी लाइन खींचा गया है जो इसके ठीक केंद्रीय भाग से होकर गुजरता है। वहीं पे ग्लोब में और भी लाइनें खींची गई हैं, जैसे कि ठीक उसके सेंटर में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो लाइन खींची गई है वो है लैटिट्यूड लाइन, और जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन खींची गई है वो है लॉन्गिट्यूड लाइन। अब किसी स्थान को ग्लोब पे दिखाना। सबसे बड़ा उपयोग ग्लोब का किसी स्थान को उस स्थान पे चिन्हित करना कि वो स्थान कहाँ पे है। हम इसको 2 सहायताओं से मदद करते हैं, 2 इमेजिनरी लाइनों की सहायता से कर पाते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं क्या, लैटिट्यूड या फिर पैरेलल लाइंस, या एक और द लॉन्गिट्यूड और द मेरिडियन लाइंस। दोनों ही मिलकर एक ग्रिड बनाते हैं जिससे मदद से हम किसी भी स्थान को खोज पाते हैं पृथ्वी पर। अब लैटिट्यूड लाइंस के बारे में। लैटिट्यूड लाइंस वो लाइन होते हैं जो कि एक कोणीय दूरी पृथ्वी की सतह पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दिखाती है, जो कि इक्वेटर के ऊपर में पाए जाते हैं। और ये जो लाइंस खींची होती हैं ये एक दूसरे से इक्वेटर से लेकर पोल की तरफ में एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, इसी के चलते इसको पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। अब लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड लाइन जो है वो भी कोणीय दूरी मापते हैं किसी भी प्लेस का अर्थ के ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि प्राइम मेरिडियन से दूरी उसको मेजर किया जाता है, जो कि सेंटर अर्थ के सेंटर तक पहुंचती है। और इस तरह के लाइन को जो हम लोग मेरिडियन लाइंस भी कहते हैं। इन्हीं दोनों लाइंस की मदद के बाद हमने पृथ्वी के हीट जोन को बनाया है, जो कि खास करके पैरेलल लाइंस के मदद के द्वारा ही बन पाया है। पैरेलल लाइंस के मदद के द्वारा हमने पृथ्वी के हीट जोन को बांटा है। इसका झुकाव के कारण जो है पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के कारण जो है यहाँ पे तापमान और ऊर्जा का वितरण जो है असमान पाया जाता है पृथ्वी की सतह पर। जितना सतह पे पृथ्वी पे ऊर्जा और तापमान मिलता है उसके आधार पे पृथ्वी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। स्थानीय समय लोकल टाइम या वैसा समय होता है जहाँ पे सन या सूर्य जो है ठीक उसके आसमान के ऊपर में होता है मेरिडियन मिड डे में, उसको मिड डे या फिर नून या फिर दोपहर उस स्थान पे कहा जाता है, जिसको कि स्थानीय समय माना गया है। स्टैंडर्ड टाइम, यह उस स्थान के द्वारा सभी स्थानीय जो हैं उसी समय पे उनके समय में परिवर्तन होता है और सभी उस स्थान के लोग एक ही समय को फॉलो करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी के साथ में भी किसी तरह का समस्या समय को लेकर ना पैदा हो। टाइम जोन, एक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपयोग ये होता है कि वो अपने स्थान पे एक स्टैंडर्ड टाइम को मेंटेन करके रखता है। ये टाइम जो है 24 घंटों में बटा हुआ रहता है। विश्व के अधिकांश वर्ल्ड जो है अपने टाइम के हिसाब से बटे हुए हैं, जिनमें जो अंतर है विश्व के अधिकांश देशों के बीच में 15 डिग्री 15 डिग्री या फिर 1 घंटे का डिफरेंस है। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच एक प्रधान मध्याह्न रेखा है जो कि ग्रीनविच आइलैंड के पास से गुजरती है जहाँ से सभी देशों के समय को मिलाया जाता है। इसको जीएमटी या फिर ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस या तिथि रेखा। तिथि को आसान बनाने के लिए हमने ग्लोब को 180 डिग्री मेरिडियन में बांट के रखा हुआ है और उसको एक्चुअली में हम उसको अर्थ का स्टार्ट के रूप से मानते हैं और एंड भी कहते हैं। इसमें
एक मेरिडियन क्रॉस करने का मतलब होता है दिवस 180 मेरिडियन क्रॉस हो जाने का मतलब होता है कि एक दिन पूरा हो चुका है या एक तिथि पूरी हो चुकी है। इसी लाइन को जो है हमने 180 डिग्री जो मेरिडियन लाइन खींचा गया ग्लोब पे उसको हम लोगों ने तिथि दिवस अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस माना है, जहाँ से तिथि जो है बदल जाती है पूरे विश्व में। द अर्थ ग्रिड, पृथ्वी का ग्रिड। पैरेलल लाइंस और मेरिडियन लाइंस दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। जहाँ वो इंटरसेक्ट करती हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और इन्हीं जालों के द्वारा जो है इनके किस कोस के कारण पैरेलल लाइंस और मेरिडियन लाइंस के चलते अर्थ ग्रिड का फॉर्मेशन होता है।